Good morning, students. Today we are going with a new chapter, chapter number 5, admission. Admission of a partner in accounting. Now there are two chapters remaining in part 1. Number 1 that is admission and number 2 is retirement. So we are going with chapter number 5, admission, and this chapter in board examination, this chapter is of 8 marks. One single sum for 8 marks. So we have to very careful for this chapter. And in admission, it may possible that they can ask 1 marks MCQ or single means one line question. So meaning of admission: when there are two partners and another partner also want to join in a partnership firm. So here the concept comes into mind: admission. Okay, there are, say for example, there are two partners X and Y. Another partner Z wants to join into the partnership firm. So admission come into the picture. Now, what are the reasons a partner may admitted in the firm? What are the reasons for which partner may admitted into the firm? Number one, when continuing firm needs additional capital. Continuing firm means X and Y. As per our example, X and Y are continuing firm. If they needs additional capital, they appoint Mr. Z as a partner so that additional capital can also increase. Second point, when the continuing firm requires the additional managerial ability. In first point, you can see that additional capital required. In second point, additional managerial ability is required. एडिशनल मैनेजरल एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एडिशनल मैनेजरल एबिलिटी का मतलब अगर दो जन पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं, अब वो हैंडल नहीं कर पा रहे, दे कैन नॉट हैंडल, सो उन लोगों ने ऐसा कुछ सोचा है कि हम कोई एक और पर्सन को अपॉइंट कर लें ताकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा डिवाइड हो जाए. तो पहले जो दो जन संभालते थे, अब वो 3 पर्सन के हाथ में आते. थर्ड पॉइंट, when any continuing partner retires or dies. If any continuing partner, there are two partners, if any one partner retire or die, then again need of one person arise in the business. So here the admission come into the picture. Fourth point, when skilled and efficient employees of a firm need to continue in the firm, therefore he is admitted by the firm as a partner. Any one employee which is skilled and very efficient, he has very good experience in this field and very good command over the customers. So पार्टनरशिप फर्म अब ऐसा सोच रही है कि ये जो एफिशिएंट एम्प्लॉय है, हमें इसको जाने नहीं देना है, हम इसको एक प्रमोशन करके हमारे साथ पार्टनर बना देते हैं ताकि क्या हो, उसका स्किल, उसका एफिशिएंसी, उसका एक्सपीरियंस और मार्केट के ऊपर जो पोटेंशियल है उसका फायदा फर्म को हो. अगर वो यहाँ से निकल के कहीं और जाता है तो वही अर्निंग हमारा कोई कंपटीटर कर लेगा. तो बेटर है फर्म ने क्या सोचेगा कि भाई इसके पास इतनी अच्छी एबिलिटी है, हम किसी के अंदर एबिलिटी ढूंढने जाए तो भी नहीं मिलती. अब जब हमें सामने से यहाँ पर अपने पास है तो उसे एक प्रमोशन और दे देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से तो हमारी इनकम बहुत सारी जनरेट होती है. हो सकता है. नेक्स्ट नंबर 5, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क ऑफ पार्टनरशिप फंड. If there is a high risk, high exposure, then this risk may be divided between the partnership by way of admission. Next, effect of admission. Admission का effect क्या होगा?
If there are two partners, then profit or loss may be divided between the two-person. But now if there are three-person, then profit or loss, it may be divided between three-person. So here the distribution of profit after the effect of admission. Second one, new partner become entitled to share the future profit. Therefore, the combined share of old partners profit get reduced. तो अगर यहाँ पर न्यू पार्टनर अगर आ जाता है, द रीजन चाहे कोई भी हो, बाय एनी रीजन, इफ ही एंटर्स इनटू द पार्टनरशिप फर्म, उससे इफेक्ट ये होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट था वो कम हो जाएगा. नेक्स्ट वन, न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट्स an agreed amount of capital in cash or in kind and acquire rights on assets of the firm. अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं. दो पार्टनर ऐसे which are doing business for last 10 years. Now, if any one partner wants to join, then old partners may demand for two things. Number one, for capital. Number two, for goodwill. मीनिंग ऑफ कैपिटल. जब 10 साल पहले पार्टनर्स ने बिजनेस ज्वाइन किया था, अब आज अगर कोई एक नया पार्टनर अगर ऐड होना चाहता है तो हम उस इंसान को डायरेक्ट तो ज्वाइन नहीं कर सकते. ओल्ड पार्टनर्स क्या आर्ग्यू करेंगे कि बिफोर 10 years वी हैव पुट दैट मच अमाउंट इनटू द बिजनेस फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड नाउ इट्स योर टर्न. अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उस टाइम पे पैसा निकाला, अब आप भी एडिशनल कुछ कैपिटल निकालो. सेकेंड वन, गुडविल. ड्यूरिंग दिस 10 years ओल्ड पार्टनर्स ने बहुत मेहनत की होगी, क्योंकि ऐसे तो बिजनेस पोटेंशियली ग्रो करेगा नहीं. क्या होगा, टाइम टू टाइम उनने बहुत सारे एफर्ट्स दिए होंगे, दिन रात एक कर दिए, लॉस भी देखा, प्रॉफिट भी देखा. इवन स्टार्टिंग के कुछ डेज में तो उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, ऐसे ही बिजनेस शांति से पड़ा रहा. तो इन सब चीज़ों को फेस करके वो आगे आगे ऊपर आए हैं. तो अब कोई नया इंसान जिसको डायरेक्ट उसको बोल देते कि भाई तू पार्टनर, और उसको तो कोई एफर्ट्स लेने ही नहीं पड़े. तो ये जो 10 साल में उन्होंने अपना मार्केट में जो नाम बनाया है, अब उस नाम को कंटिन्यू करने के लिए, उसको ऐड होने के लिए हम उससे और एक चीज कलेक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं गुडविल. सो देर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ कैश दैट न्यू पार्टनर हैव टू ब्रिंग इनटू द बिजनेस. नंबर वन, कैपिटल. नंबर टू, गुडविल. रिमेंबर. नेक्स्ट, balance of accumulated profit and loss, reserves and fictitious assets appearing in the books on date of admission is distributed in the old partners in the old ratio. यहाँ पर P&L account, general reserve, any fictitious assets like goodwill, P&L account, debit, advertisement, suspense, this is called fictitious assets. So P&L account, reserves and surplus, fictitious asset which are given in the question, it means in the books, that is distributed between the old partners in old ratio. अब यहाँ पर old partners में क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब नया पार्टनर ज्वाइन हुआ है तो उससे पहले पुराने पार्टनर्स ने बहुत सारे एफर्ट्स दिए होंगे. तो अभी भी बुक्स में जो भी है वो पुराने पार्टनर की वजह से ही है. नए पार्टनर ने अभी तक कुछ किया ही नहीं, वो तो सिर्फ अभी ज्वाइन हुआ. तो जब उसका एडमिशन होगा तो हम ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो. नेक्स्ट, assets are revalued and liabilities are reassessed and net change is adjusted in old partners capital account.
There is change in assets and liabilities at the time of admission of partnership firm, for which we are preparing revaluation account, which you have seen in chapter number 4, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। वहां पर हमने देखा था एक रिवैल्यूएशन, और उस टाइम पे मैंने बोला था कि इस चैप्टर नंबर 4 के लिए इसकी जरूरत नहीं, बट चैप्टर 5 में इसका काम आएगा। तो अब वो हम यहाँ पर उसका एडवांटेज लेने वाले हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, इफ एसेट इंक्रीज देन क्रेडिट, एसेट डिक्रीज देन डेबिट, liability increase debit, asset increase credit, and liability decrease credit. So assets and liability revalue होने की वजह से या तो assets increase होगा या तो asset decrease होगा, तो उसकी इफेक्ट हमें revaluation अकाउंट में देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, goodwill of the firm is revalued and new partner contributes his share of goodwill in cash or kind, and its accounting effect is given. Goodwill of the firm is revalued. Why goodwill of the firm is revalued? Because after admission of new partners, total goodwill of the firm is divided amongst the three partners instead of two. Means old plus new. सबको हम ऐड करने के बाद goodwill यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। So यहाँ पर गुडविल का आपको इफेक्ट देना पड़ेगा। सो जो नया पार्टनर गुडविल इन कैश लाया होगा तो उसकी हम इफेक्ट यहाँ पर देने वाले हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट इफेक्ट, नाउ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज ऑफ थ्री पार्टनर्स। 7th point, accounting effect is also given for maintaining agreed capital in the new firm amongst the old partners if decided in new partnership agreement. अब accounting effect is also given किसके लिए, फॉर मेंटेनिंग एग्रीड कैपिटल इन द न्यू फर्म। नया पार्टनर जब आया होगा तो उसके बाद वो हो जाती है न्यू फर्म। पहले थी ओल्ड फर्म, फिर आफ्टर कंप्लीटिंग द एडमिशन वी कॉल्ड इट एज अ न्यू फर्म। तो न्यू फर्म अगर वो हो जाती है तो ओल्ड पार्टनर्स का तो कैपिटल होगा, लेकिन न्यू पार्टनर का कैपिटल भी वहां पर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा एज पर दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो भी रहेगा हम उस हिसाब से यहाँ पर उसको एडजस्ट करने वाले हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। In change in profit sharing ratio, before admission there is a old ratio. Before admission there is a old ratio between the old partners, but after admission there is a new ratio for all partner. All partner means old plus new. So जहाँ पर भी मैं आपको यहाँ पर वर्ड लेता हूँ कि all partner, तो all partner का मतलब आपको ऐसा समझना है कि ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर सब उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। थर्ड एक रेशियो आता है सेक्रीफाइस रेशियो, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस इन चैप्टर नंबर 4। सेक्रीफाइस रेशियो, मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो इज at the time of admission old partner have to sacrifice some share in favor of new partners. So effect of sacrifice, new partner gets some gain which sacrificed by the old partner. So formula for sacrifice ratio is old ratio minus new ratio. तो यहाँ पर हमें तीन अलग अलग रेशियो काम आने वाले हैं। नंबर 1 ओल्ड रेशियो, नंबर 2 न्यू रेशियो, नंबर 3 सेक्रीफाइस रेशियो। ओके, सो यहाँ पर आपको सब रेशियो के बारे में समझाया हुआ है। अभी जो स्मॉल सम्स है वो आपके सिलेबस में से निकल गए हैं, तो स्मॉल सम्स हम इसको नहीं कवर करेंगे, लेकिन जहाँ लॉन्ग सम्स हम करने वाले वहाँ पर इसकी कहीं ज़रूरत पड़ी तो उस टाइम पर मैं आपको सिखाने वाला। ठीक है, जर्नल एंट्री आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी, गुडविल की जर्नल एंट्री। तो मैं गुडविल की जर्नल एंट्री आपको इसके लिए मैं आपको एक पेज शेयर कर रहा हूँ जहाँ पर हम गुडविल की जर्नल एंट्री देखने वाले हैं।
So here chapter number 5, admission of a partnership form, journal entry for goodwill. This journal entry that you have to remember. First of all, I will explain. New partner. In our example, new partner is Z. Bring capital in cash. I have told you before that there are two kinds of cash that new partner have to bring into the business. Number one, capital in cash. Number two, goodwill in cash. So व्हाट इज कैपिटल इन कैश? जब नया पार्टनर एंटर होगा तो उसे कुछ हिस्सा अपनी पार्टनरशिप को रखने के लिए उसको लाना पड़ेगा, तो उसको हम नाम देते हैं कैपिटल. न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल इन कैश. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर. एज पर द 11 स्टैंडर्ड दिस इज द जनरल एंट्री. हमारे पास कैश आएगा, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर विल सेट कैपिटल अकाउंट डेबिट. Here you have to write down the name of new partner. Second, new partner bring goodwill in cash. So again cash comes in, cash bank account debit. Two, if the name is used goodwill in cash, then sacrifice partners capital account. सेक्रीफाइस पार्टनर मतलब जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है वो. एंड हाउ वी गेट द सेक्रीफाइस पार्टनर्स? फॉर विच वी हैव टू फाइंड आउट सेक्रीफाइस रेशियो. सेक्रीफाइस रेशियो मीन्स ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सो जिनका आंसर सेक्रीफाइस में आएगा उनका नाम यहाँ पर आएगा. अगर x और y में से ओल्ड पार्टनर x और y में से अगर x ने सेक्रीफाइस नहीं किया तो यहाँ पर x का नाम नहीं आएगा, सिर्फ y का नाम यहाँ पर आएगा. एंड सेकेंड थिंग, अगर x का सेक्रीफाइस रेशियो हमने फाइंड किया एंड इफ आंसर इज ए नेगेटिव, अगर नेगेटिव आता है तो उसको हम डेबिट कर देंगे. क्रेडिट की जगह पर हम उसको डेबिट कर देंगे. यानी कि अगर हमारा सेक्रीफाइस रेशियो का आंसर है -1/5, तो जो हमें क्रेडिट करना था उसकी जगह पर हम उसे डेबिट करें. थर्ड, गुडविल इज टू बी रीवैल्यूड. गुडविल इज टू बी रीवैल्यूड मीन्स गुडविल रीवैल्यूएशन. अगर गुडविल का रिवैल्यूएशन हो रहा है तो जर्नल एंट्री हमारी यहाँ पर ऐसी होने वाली कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to sacrificing partners capital account. New partner means Z's capital debit. To sacrifice means X and Y. जिनका आंसर sacrifice में आया होगा हम उनका नाम लिखने वाले हैं in sacrifice ratio. And lastly, old partner withdraw some percentage या तो some amount of their share of goodwill. Means here you can see that new partner bring goodwill in cash. नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाने वाला है. अब अगर ओल्ड पार्टनर्स इसे विड्रॉ कर लेते हैं, अगर ओल्ड पार्टनर्स ये अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं, सो हमारा काम क्या होगा? ये जो जर्नल एंट्री है उसको हम रिवर्स कर देंगे. रिवर्स कर देंगे मीन्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. Okay, so these are the 4 journal entries that you have to remember at the time of admission. So आज का क्लास हम यहीं पर फिनिश करने वाले हैं. आज मैं ज़्यादा नहीं करवाने वाला. मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. तो be ready for next class.